ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمیں کوریج دی ہے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ جو شہداء فورم بلوچستان کی توسط سے ہم یہاں یکجا ہوئے ہیں، یہ ہمارا 8واں دن ہے۔ ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت وقت کے سامنے، جوڈیشری کے سامنے کئی دن پہلے پیش کیے ہوئے تھے، اور جس میں بلوچستان حکومت کے نمائندے، جن کا میں بہت مشکور ہوں، انفارمیشن منسٹر جانا چکری صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے صوبائی سطح پہ ہمیں یقین دہانی کرایا کہ ہمارے جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں ان پر پیش رفت ہوگا، اور ہمارے جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کو ضرور انصاف ملے گی۔ لیکن پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا دھرنا ابھی تک ختم نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ شہداء کی جو لواحقین ہیں وہ صرف بلوچستان میں نہیں رہتے بلکہ پورے پاکستان میں ان کا تعلق ہے، کے پی میں بھی ان کا تعلق ہے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی ان کا تعلق ہے۔ تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ کریں کہ جب تک کوئی فیڈرل ڈیلیگیشن ہمارے پاس مذاکرات کے لیے نہیں آتی، ہم اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اور اسی بنیاد پہ ہم ایک کامن گراؤنڈ پہ ایگری ہم نے کی کہ ہم اپنے بچے اور اپنے خواتین ہیں ان کو واپس بھیجیں گے۔ آج جو پریس بریفنگ کا ہمارا مقصد ہے، کیونکہ چند دنوں سے ہمارے اوپر کیچڑ اچالا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے 12 میڈیا سے یہ درخواست کی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہمیں کوریج دیں، ہمیں الیکٹرانک میڈیا پہ کوریج دیں۔ ہمارا جو موقف ہے وہ آگے آئے، کیونکہ ہم واضح طور پر کسی کے خلاف نہیں آئے، ہم واضح طور پر کسی کے نیریٹو کو سبوتاج کرنے نہیں آئے، بلکہ پورے پاکستان کو یہ دکھانے آئے ہیں کہ جدھر ایک مسنگ پرسنز کا ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے، وہاں کچھ ایسے بھی فیملیز، کچھ ایسے بھی لوگ بستے ہیں جن کا تعلق غریب طبقے سے ہے، جن کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے ہے، جن کا تعلق سویلین سے ہے، اور وہ بھی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک ہی بنیاد پر شہید ہوتے ہیں، اور وہ بنیاد ہے، ایک ہی وجہ پر شہید ہوتے ہیں، وہ وجہ ہے پاکستانی شہری ہونے کی وجہ، وہ ہے بلوچستانی ہونے کی وجہ، اور امن کے اوپر وہ شہید ہوتے ہیں۔ آج میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، صرف ایک ہمارے پاس 2 ایسے لوگ ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ جن کی اگر آپ کہانی سنیں تو کچھ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کی جاتی ہے وہ کچھ واضح ہو۔ اور جہاں تک بات ہے تھریٹس کی، ہمیں تو سوشل میڈیا سے لے کر ریالٹی میں بھی تھریٹس دیے جا رہے ہیں۔ کل سریاب روڈ میں جو میرا پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں میرے پوسٹرز پر شدت پسند عناصر نے فائرنگ کر کے میرے پوسٹرز پاڑے ہیں، میرے بندوں کو دھمکیاں دیا جاتا ہے۔ تو خدارا میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ایشو میں، اگر مسنگ پرسنز کے ایشو میں کوئی پالیٹکس انوالو نہیں ہوتا، پھر میرے الیکشن کیمپین کو کیوں سبوتاج کی جا رہی ہے؟ تو زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، ایک بھائی آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے۔ والد صاحب تعارف پورا کرفس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجزور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور باقی کی ان کی خدمت کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے میں نے آگ بھی جلایا، ان لوگوں کے لیے اتنی خدمت کی، رات میں ماں بہنوں کے لیے میں پانی بھی گرم کیا تھا کہ یہ میرے مائیں اور بہنیں ہیں۔ ڈاکٹر مارنگ نے جب آواز دیا تھا تو میں نے اپنے کام چھوڑ دیا، کیونکہ میرے ماں باپ بھائی بولتے ہیں کہ جاؤ، وہ بھی آپ کی بہن جیسا ہے۔ تو میں نے اپنے کام چھوڑ کر یہاں پر آیا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب جیل میں تھا، تو یہاں پر میں نے پوری رات سردی میں گزاری، اور اس رات میں بارش بھی تھا۔ تو ان لوگوں نے ان خدمتوں کو
नहीं समझा। मैं इस खिदमत के अल्लाह की खातिर किया था और अपने शौक नाम के लिए नहीं किया था। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों दोस्तों, बात साफ ये है, ये लोग दीन से इनकार करते हैं। डॉक्टर मारंग जिस मकसद से आए अल्लाह उसको ये कामयाब करे, ये लोग भी आए अल्लाह इन लोगों को भी कामयाब करे। ये लोग शहीद है, वो लोग भी शहीद है, जैसा भी है अल्लाह इन दोनों को कामयाब करे, मेरा यही दुआ है। लेकिन डॉक्टर मारंग के साथ जो डॉक्टर ज़हीर है ना, वो इंसान नहीं हैवान है, हैवान। उस हैवान को ये कहना चाहता हूँ कि है हैवान, ये किताब मैंने जब तुम्हारे कैंप में लाया ये गलत नहीं है, इसमें नमाज के तरीके हैं, इसमें अल्लाह की बड़ाई है और ये फ़ज़ाइल अमाल है, जिससे इंसान वो इंसान जब हैवान है ना, जब इस किताब को पढ़ता है वो इंसान बनता है। हमने खुद सुना है कि एक चोर, एक डाकू जब अल्लाह के रास्ते में जाता है वो तबलीग वाला बनता है, वो इंसान बनता है, हैवानी ज़िंदगी को भूलता है। ये किताब को उसने बोला हमारे कैंप में अलाउड है और इसको मैं इजाज़त नहीं देता हूँ, और अगर इसका तालीम करते हो छुपके छुपके करो। अल्लाह की बड़ाई छुपके छुपके हो सकता है, किसी के पास जवाब है? हो सकता है अल्लाह की बड़ाई छुपके छुपके? नहीं हो सकता है। हज़रत उमर के दौर में भी नहीं हो सकता था। ये तो दौर है, मुसलमानों का दौर है। हाँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खालिक है, अल्लाह के सिवा हमारा कोई खालिक नहीं है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों पर हम सब चलेंगे तो हम सब कामयाब हो जाएंगे। उनके नूरानी तरीक़ों से हट कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो नाकाम होंगे। तो ये क्या कह रहा है, इसके कायद आज़म में यूनिवर्सिटी वाले लड़के पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह पाक पंजाबी है, हमारे साथ जुल्म कर रहा है। हाँ, आप लोग सोचो, उस बादशाह उसको कैसे बोल रहे हैं, खालिक को कैसे बोल रहे हैं? इंसान है, हैवान है, अल्लाह का ये उस्ताद है, उस्ताद। ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, इनकी मैं टीचरों से गुजारिश कर रहा हूँ ना, इन लोगों को इतनी परवरिश नहीं दो कि अल्लाह के उस्ताद बन जाए। आपको आपकी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है, आपका नाम को ख़राब कर रहा है। आप एक उस्ताद हो और इसको इतना तरगीब दे रहे हो। उनकी माँ बाप ये है कि मेरे बेटे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो भी इस्लामाबाद में खुश है, मजदूरी कर रहा है कि अपने बेटे को पढ़ा रहा है, बेटे कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये बेटे कामयाब नहीं, बिगड़ रहा है। ये सीधी सी बात है मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों दोस्तों। अल्लाह और अल्लाह के नबी के तरीक़ों पर अपना ज़िंदगी बसर करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, और उनके तरीक़ों से हट कर ज़िंदगी गुजारेंगे नाकाम होंगे। मेरा नाम ग़ुलाम कादिर है, मेरा वालिद का नाम नसीर अहमद है, मैं कौम का मोहम्मद असनी हूँ। मेरे को रात से उन लोगों ने निकाल दिया, बोला था कि आज तुम्हें यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि तो अल्लाह का बड़ाई कर रहा है। ये मुसल्ला नहीं है, मुसल्ले हमसे छीन लिया। और मेरे दोस्त था, वो चिल्ले के लिए आया था, तो वो कह रहा था भाई हमारा चिल्ला यहीं लगेगा और हम लोगों का यानी रास्ता यही है। तो जब वो नमाज़ पढ़ रहा था उसको धमकी दिया, भाई आप इधर नमाज़ पढ़ाया, हम आपको निकाल देंगे। लेकिन रात में हमको निकाल दिया। ये इस्लामाबाद में हमारा पहचान वाला कोई नहीं था, तो फिर हमारा पहचान था अल्लाह का घर। हम वही गया था और सो गया, सुबह हो गया था। पूरी रात मेरे दोस्तों ने रोया था कि अल्लाह की ये उस्ताखी की, तहज्जुद भी पढ़ी, दुआ भी की थी। फिर सुबह मशवरा किया था, तीनों ने मशवरा किया भाई अब क्या करें। तो हम लोगों ने बोला कि जाकर डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, डॉक्टर मारंग से, अगर उसने जो भी इजाज़त दिया तो हम वैसा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गया और उन लोगों की ये सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उन लोगों ने वहीं से गेट से हमें रोक दिया और उन्होंने ये बोला आप लोगों को इजाज़त नहीं है, और डॉक्टर ज़हीर ने बोला इसको इजाज़त नहीं है। तो डॉक्टर ज़हीर को भी फ़ोन कर दिया कि भाई ये रात वाले लड़के आ गया है, इसको क्या बोलेगा। डॉक्टर ज़हीर ने मेरे साथ बात किया था, मेरे को बोला तो आप मेरे रात में बोला है तो आप मेरे भाई हो। मैंने बोला भाई नहीं हो आपका, अगर भाई होते भाई को दीन के लिए छोड़ लेते, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। तो उसने बोला तो अभी भाई ऐसा करो कि आप निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो ये साथी आपको मार देगा। तो पे निकल गया, दूसरे काम पर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्वागत भी की थी, अच्छी तरह से खिदमत भी की, चाय भी पिलाया था, और ये किताब को इतनी इज़्ज़त दी थी ना, उन लोगों ने बोला आज के बाद इस किताब की तरगीब यहीं दो, आपको इजाज़त है। तो अस्सलाम वालेकुम, यही मेरी बात थी, शुक्रिया। तो एक और हमारे पास एक भाई है जो अपना गाँव आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। इनकी ख़ानदानों ने बड़ा कुर्बानी दी है, उनके साथ ये जो शिद्दत पसंद, हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि जो शिद्दत पसंद तंजीम हैं, अनासिर हैं, उनके ख़िलाफ़। तो मुख्तसरन वो अपना बयान करेंगे। मुमताज़ अहमद नाम है मेरा, खारान का रहने वाला हूँ। ज़िला खारान से मेरा ताल्लुक़ है। खारान का वो इलाका जो पहाड़ी सिलसिला है, लिज्जे, शूर, पारोद,
नीमर खलात के साथ मुंसलिक है। तो यहाँ आने का मकसद ये है आपसे बात करने की कि हमारे इलाके में हमारे लोगों से इतना इन्होंने जुल्म की है कि इतना वक्त नहीं है कि मैं उनको आपके सामने बयान करूं। जुल्म इन्होंने इतना की है कि कौन सी दास्तान आपको सुनाऊं। हमारे बंधुओं को इन्होंने शहीद की है, मेरे भाई को शहीद किया, मेरे 2 चाचाजाद भाई है उनको शहीद किया। इलाके में तकरीबन जो पहाड़ी इलाका है वहाँ इतना आवाम नहीं है, एक एक 2 घर है, उनमें भी उन्हीं इलाके में भी 50-60 बंदूकों को इन्होंने शहीद की। मेरा सवाल ये है कि वजह क्या है, क्यों इनको शहीद किया जाता, मसला आपको क्या है। और शहीद करने के बाद उनको इलाकों से, अपने घरों से, अपने खानाबदोशी जो उनका रहने का वो था वहाँ से भी निकाला है। 200-300 घर है उनको खाली कराया है। रिक्वेस्ट मेरा हुकूमत वक्त से ये है कि मज़ीद इसको न दे के बल्कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, शहदा के साथ ताउन करे और शहदा को तहफ़्फ़ुज़ दे। अभी अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते वो मज़ीद घरों में घुस कर 2023 में अभी भी ज़मान खान को इन्होंने शहीद की, 22 में मेरे घर पर इन्होंने हमला किया जिसमें मेरा चाचाजाद भाई शहीद हुआ। इसी तरह हर साल हर महीने में एक न एक कार्रवाई ये लोग करते हैं। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं मीडिया वालों से कि आप हमारी आवाज़ को, आप हमारी इस अल्फाज को वहाँ तक पहुँचाए कि जहाँ उनको सुने, जैसे आप सुन रहे हैं आप आगे इनको शेयर करें। ये ना कल यहाँ बाई से एक बहन ने इंटरव्यू ली, बीच में कुछ सवालात ऐसे थे जिस पे मैं बोला जो हकीकत बात थी और दिखाया भी, उनको उन्होंने काट दिया, बाकी को शेयर की। आपका काम है दियानतदारी, आप कौम के अमानतदार हो और आप खुलूस से दिल से हक और सच की तमीज़ आपके ऊपर है, आप सही तरीके से इन बातों को पहुंचाए। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, जैसे आपने देखा कि अगर मैं ये चीज़ बोलता तो शायद लोग इसको कहते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत सारी उंगलियाँ हैं कि ये डेथ स्क्वाड लीडर का बेटा है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी वगैरह नहीं है। लेकिन आपने खुद सुना कि जो हमारे पहले भाई थे उन्होंने उस कैंप में पहले दिन से उनका साथ दिया है और हमारे पास आए तो हमने कहा वेलकम, हमारे ही बलोच हो आप, हमारे सूबे के रहने वाले हो, हमारे भाई हो आप, जो भी आपके गिले शिकवे हैं आप मीडिया के सामने शेयर करें और आवाम के सामने शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये हो रहा है। कल भी बलुचिस्तान में FC पर धमाका किया गया, जिधर 4 अफराद शहीद हुए, पुलिस के 2 अफराद शहीद किए गए। तो ये कौन करा रहा है, ये कौन कर रहा है? तो सवाल हमारा ये है कि अगर शहदा की आवाज़ बनने से हमें इतना नुकसान पहुंचता है, हम पहले भी कुर्बानी दे रहे हैं, हमें कुर्बानी से दरेग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ना ही हम किसी से डरते हैं। मेरे भाई को शहीद किया गया 2011 में, जिसकी क्लेम BLA ने खुद की है। द नेशन, आप लोगों को पता होगा कि एक न्यूज़पेपर है, उसमें छपा गया कि अकमल रसानीस एसेसिनेशन लिंक्ड विद रॉ। तो रॉ को कौन हेड करता है? BLF हेड करता है। उसके बाद लोग तो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, भाई 2018 में आपकी वालिद को शहीद किया, आप यहाँ क्यों आए हैं, इतने सालों के बाद यहाँ क्यों आए हैं? तो क्या ये हमारा
जमहूरी हक नहीं है कि हम अपने जो जुल्म है उसकी आवाज़ उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं। हम उनके लिए भी आए जो कल शहीद हुए, हम उनके लिए भी आए जो आज शहीद हुए, और हम उनके लिए भी आए हैं जिनकी जानों को ख़तरा है। तो खुदारा जो असल पूरा पिक्चर है, जैसे मेरे बुज़ुर्ग ने कहा कि कल एक जर्नलिस्ट आई थी, उन्होंने हमसे सवालात किए और हमारे मौक़िफ़ लिया। हम तो बड़े खुश हुए कि वो हमारे मौक़िफ़ बयान करेंगे। फिर जब उन्होंने जो इंटरव्यू नशर किया उसमें तो हमारे मौक़िफ़ या हमारे जो मिशन का जो कॉज़ है उससे मुतल्लिक़ कोई भी ऐसा सवाल का जवाब उन्होंने नहीं डाला था, बल्कि अपने ही जो नैरेटिव को वो प्रोपगेट कर रहे हैं उसके हवाले से। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि आप पूरा जो सिनेरियो है इसको ग्राउंड रियलिटीज़ भी दिखाएं। बहुत शुक्रिया जी। जमाल रेशमी साहब, आप एक सियासतदान हैं, सियासतदान के बेटे हैं और आप एक हल्के में विज़न भी करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुरान मजीद किताब उठाकर उन ख़वातीन को ये कहना कि वो दीन से इनकारी हैं, आप भी समझते कि एक ब्लास्फेमी जो है उसको और बढ़ावा देकर आप उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं? मैंने देखें जी, ये जो बंदा आप लोगों के सामने उन्होंने बयान किया है वो उनके कैंप से आया है हमारे तरफ, ठीक है ना जी। हमारे पास प्रूफ भी है और वो भी हम अपने मीडिया के हजरात के साथ शेयर करेंगे। मैंने तो ख़ुद नहीं कहा, उन्होंने, उनकी आबिती है, उनसे आप पूछें कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है जी। सर, हम यहाँ पर ये तो नहीं आए कि उस टाइम में था, उस टाइम में था, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आपकी उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, तो फिर यानी कि क्या मैसेज आज हम समझ नहीं पा रही, ज़्यादा समझ रहे हैं सर जो है सकते हैं सर कि आप पुराने मजीद को उठाकर। कोई और सवाल है तो करें, कोई और सवाल है तो करें आप। थैंक यू। समझ जाएंगे फिर बताइए। मैसेज तो क्लियर कट था, अगर आपको समझना है आप समझें, अगर नहीं समझना तो आपकी मर्ज़ी। आपको समझने में थोड़ा